friends, today we will read lesson 1 of A Pact with the Sun class 6 book NCERT. We will read it and explain it in Hindi. I hope you understand it. So we start now. A tale of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. एक बार एक मम्मी बर्ड रहती थी, अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। तो एक बार बहुत तेज आंधी आई तो उसमें उनकी मम्मी की डेथ हो गई। तो दोनों जो बच्ची थी वो अलग अलग चले गए, मतलब जो दोनों वो थे अपने सिबलिंग्स थे वो दोनों अलग अलग चले गए और उन दोनों को अपना अलग अलग घर बन गया। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, एक चिड़िया के दो नए बच्चे हुए थे फॉरेस्ट में और वो उनको एक बड़ी से छाया वाले पेड़ में रखती थी और उनका बहुत ध्यान रखती थी। दिन में रात में हमेशा उनका ध्यान रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the winds blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit baby birds. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram, a little distance away. एक बार की बात है, एक बार बहुत तेज आंधी आई हुई थी, खूब बरसात हो रही थी, खूब बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज हो रहा था और उसमें जो आंधी आई थी उससे बहुत सारे पेड़ टूट गए थे और उसमें एक ट्री उनका भी था जो बर्ड था, उसमें उनकी मम्मी बर्ड मर गई और फिर वो जो दोनों बच्चे थे एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिर गई एक चिड़िया और एक गैंग ऑफ रॉबर्स माने वे जो चोरी करते हैं उनके घर के पास गिर गई। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दिन बीतते गए और बेबी बर्ड बड़ी बर्ड बन गई। एक दिन एक देश के राजा एक फॉरेस्ट में जंगल में गए थे शिकार करने। तो इन्होंने एक डियर को देखा, एक हिरन को देखा। उनके पीछे जाने लगे और फिर उस फॉरेस्ट में वो रास्ता भटक गए उस जंगल में। अब ही रोड on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there is some under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. एक बार की बात है, जब बहुत अंदर चले गए तो वो एक दूसरी तरफ फॉरेस्ट के वो बहुत थक गए थे तो वो घोड़ा को साइड में खड़ा कर दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। फिर उन्हें एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। राजा कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे है कोई, चलो देखते हैं। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। चलो जाके उसके हीरे और उसके घोड़े को ले लेते हैं। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी चलो नहीं वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग बहुत हैरान हो गया। उसने देखा एक बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया जो थी वो बैठी हुई थी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी केव से, वो सुन रही थी। ही क्विकली गॉट
onto his horse and rode away as fast as he could. वो क्विकली उस पर बैठ गई अपने घोड़े पे और इतनी तेज भाग गई। राजा जो था वो भाग गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the rishi's ashram. The king tied his horse to the king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big bird in the tree. He was amazed. The one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. एक दिन वो उस आश्रम के पास आए। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। उनको ऋषि के आश्रम के पास गए और एक घोड़ा उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो उसकी आवाज़ सुन के वो दंग रह गए। "वेलकम टू द आश्रम सर, आप आश्रम में आए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट।" उसने कहा, आइए अंदर आराम कर लीजिए। जो ऋषि हैं वो आ जाएंगे। अब वहाँ पे घड़े में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है ठंडा, वो पी लीजिए आप और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड। फिर उसी ने, जो वो तो उसका भाई था, तो उसने सोचा कि ये दोनों तो सेम टू सेम दिखते हैं। तो फिर वो बहुत अमेज्ड हो गए, मतलब वो बहुत वो हो गए। द वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने मन में कहा, हाँ, कि ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। "यू आर राइट सर," आंसर्ड द बर्ड। "ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स।" हाँ, आप सही हैं, ये मेरा भाई है लेकिन उसने रॉबर्स को दोस्त बना लिया है। "ही नाउ टॉक्स एज दे डू।" वो वैसे ही बात करता है जैसे वो चाहता है। "ही डजंट टॉक टू मी।" वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। फिर ऋषि आ गए आश्रम में। "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग। "प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। You look tired. Rest for a while, then you can share my food." The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently. Tough they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. ऋषि ने कहा, आइए सर, आइए, इसको अपना ही घर समझिए कि आप अपने ही घर में हैं और अब आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ी देर आराम करिए और फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so different. Tough they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. जो किंग थे उन्होंने ऋषि को बताया कि ये दो चिड़िया की स्टोरी है, कैसे दोनों ने बिहेव किया। दे लुक्ड सो अलाइक, वो दोनों एक ही जैसे दिखती हैं। "द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज," ही सेड। जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। "The holy man smiled, and after all, one is known by the company one keeps. The bird always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell more about this place and these birds." जो होली मैन था वो स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो हर कोई है वो एक कंपनी से ही जाना जाता है। "द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स।" वो उस चिड़िया ने हर बार चोरों की वो बातें सुनी है, तो वो चोरी के बारे में बताती। "ही इमिटेट्स एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल।" वो ऐसा चोरी के बारे में बताया करती। "दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड।" ये जो चिड़िया है ये वही बताती है जो इसने सुना है। "ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम।" वो पीपल को आश्रम में वेलकम करती है। "नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड।" आप यहाँ बैठिए, फिर मैं आपको और बताऊँगी इस चिड़िया के बारे में। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना मत भूलिएगा। आगे के वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे कुछ और नए चैप्टर्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।